Hello and assalamu alaikum. We're back here with Simon today, and we will be talking about his favorite topic, his niche, the geopolitics and the geoeconomics today. How are you, Simon? Great. So good to have you back. Acha, I'm going to start today with a quote from one of your blogs, where you said, um, you talked about Pakistan's position, and and I'll just start with this quote: "A few flashes of brilliance are punctuated with pathetic lows and a yawning national disconnect." Talk to us. Tell us what you were thinking about. Okay. What it's not what I was thinking about. It's something that I am convinced about, and so are many patriotic Pakistanis Mm, who form the majority of Pakistan. Um I personally feel uh, Pakistan has always had flashes of brilliance. You see, the first example is Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. mm, Then we have the example of brilliance by the East Pakistani leaders like Nawab Sir Salimullah Khan, Qasim Fazle Haq, Hussain Sheikh Sohrawardi, and many others who were actually the building blocks of Pakistan. Uh, we ended up nowhere despite this brilliance. We've had this brilliance in various fields. We've had Dr. Salam, Nobel Prize. You have the our nuclear scientist who made Pakistan a nuclear weapon state. Brilliant. We had one of our best sportsmen, Imran Khan, who emerged as one of the most charismatic political leaders in Pakistan, and he still is. Uh, we used to have hockey once upon a time, even squash. It's all gone now. Uh, these have been the various flashes of brilliance. And there was a time in the 80s, mid 80s, and late 80s, uh, when the Pakistani computer industry was competing with the United States of America in hardware. Where has it gone now? It's nowhere. mm, We had great flashes of brilliance in Pakistan International Airlines. We had them in Pakistan Railways, which trained the railways right from Japan up to Malaysia and Sri Lanka. Walton Training School for the railways used to have a lot of foreign students who used to be trained. So it's been all over. PIA was the best airline in the world. They made so many airlines. They helped the Singapore Airlines, Malaysian Airlines, Korean Airlines, Emirates, all these. The flashes of brilliance ultimately got eclipsed by mediocre people, and that is what the yawning gap about Pakistan is. You see, when you make a house, you have to have an architectural plan. जो आप घर बनाएंगे mm, उसकी जो बुनियादें हैं वो चट्टान पे खड़ी होंगी, रेत पे नहीं। अगर रेत पे होंगी तो बहाव आएगा, पानी आएगा, सिंक वेल्स आएंगे, आपका घर तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान की असल बुनियादें तो एक चट्टान पे बनी थी, जो कि पाकिस्तान का नज़रिया था और पाकिस्तान के अवाम की एस्पिरेशंस की रिफ्लेक्शन थी। लेकिन फिर हम उन बुनियादों को खोखला करते चले गए हैं। तो ये जो बुनियाद एक मजबूत होती है, इसको कहते हैं आर्किटेक्चर, और स्ट्रैटेजी mm, में इसको कहा जाता है आर्किटेक्चर ऑफ नेशनल पावर। मसलन हैंस मॉर्गेंथो ने कहा हुआ है, जिसको दुनिया भर में माना जाता है एज द बेस्ट राइटर ऑन नेशनल पावर। उन्होंने कहा है कि नेशनल पावर rises from a relatively stable platform of geography mm, through various gradations of instability to the fleeting opportunities of national character and morale. अल्टीमेटली आपकी जो नेशनल पावर की जो रिफ्लेक्शन है, आपके पास जितने मर्जी रिसोर्सेज हो, वो आपके नेशनल करेक्टर और मोरल में आती है। आपका नेशनल करेक्टर क्या है, आपकी लीडरशिप कितनी सिंसियर है, जो इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स हैं लीडरशिप में, वो कैसी है, क्या वो मुल्क के अवाम को मोटिवेशन दे सकते हैं
कि सब यकसू होके एक ही वक्त काम करें अपने मुल्क के लिए और उसको उसको तरक्की के रास्तों पे गामजन करें। तो ये जो लास्ट फैक्टर है, फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, Hmm. which falls in the domain of social dimension and societal dimension of any country. It falls in civil society is a small part of this. अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं और अगर आप इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसको करप्ट करते हैं, तो वो मुल्क कहीं भी नहीं रहता। हमने वो वक्त देखा है पाकिस्तान में जब 3 रुपए का डॉलर होता था। हम जब बलोगत पे पहुंचे तो हमने 13 रुपए का डॉलर खुद एक्सचेंज किया। आज आप देख रहे हैं Hmm. डॉलर का क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस प्राइड होती थी जब हम बैरून मुल्क सफ़र करते थे तो पीआईए से बेहतर चॉइस ही कोई नहीं होती थी। और यह ज़्यादा देर पहले की बात नहीं, आज से 35-40 वर्ष पहले यही सूरत हाल थी। हर 5 मिनट बाद दुनिया के किसी न किसी एयरपोर्ट पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जहाज़ या त्यारा टेक ऑफ कर रहा होता था या लैंड कर रहा होता था। सब कुछ जो है ना हमारा वो तबाह हो चुका है पाकिस्तान में। तो ना मुझे हमने ना हमने अपना आर्किटेक्चर बिल्ड किया है और ना हमने नेशनल कैरेक्टर और मोरल में उन चीज़ों को दखल अंदाज होने दिया है जो हमारे जो मसलहतों के फैसले हैं उनको रद्द कर दिया। बिल्कुल। अब मुझे याद है एक वो ज़माना होता था जब कराची एयरपोर्ट का जो शुमार होता था वो आई थिंक वर्ल्ड्स बिज़िएस्ट एयरपोर्ट्स में कंटेंडर हुआ करता था। एक वो कराची सालों शहर पुरानी जो बात। था अरूसुल बिलाद कहलाता था। इट वाज़ द सिटी बिल्कुल, ऑफ। और जब कोरियन बिल्कुल, वॉर खत्म हुई तो टाउन प्लानर्स जो कराची के थे उनको उठाया गया और उनको सियोल लेके जाया गया, क्योंकि सियोल जो साउथ कोरिया का कैपिटल था वो बिल्कुल तबाह हो चुका था कोरियन वॉर की वजह। उसकी रीबिल्डिंग, उसकी रीडिज़ाइनिंग, और अब तो सियोल बहुत ज़्यादा फैल गया है, वो बिल्कुल। पाकिस्तानियों ने की, कराची के टाउन प्लानर्स ने की थी। और रसूल बिलाल बहुत बड़ा नाम था कराची का। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द सिटी ऑफ लाइट्स? दुल्हन की एग्ज़ैक्टली। तरह कराची का शहर, इट यूज्ड टू लुक लाइक अ पोर्चुगीज़ मेट्रोपोलिस। बहुत खूबसूरत होता था किसी ज़माने में कराची। हुँ। तो फिर उसके बाद कराची ने बहुत-बहुत तरक्की देखी, हमारा पोर्ट बहुत वो होता था। अच्छा ये बताएँ आप मुझे, आपने ना 2 बातें की अभी, एक अभी और एक आपके उसमें से भी, और उसको टाई करते हैं। एक तो हम लोग आपने अभी जो बात की उसके अंदर ये कि अम, एक आर्किटेक्चर की बात की आपने, राइट? एक स्कैफोल्डिंग की कि जिसके ऊपर एक बुनियाद बनती है, राइट? व्हेन यू सेड एक चट्टान है जिसके ऊपर बनता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इतनी देर में आया, राइट? क्योंकि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन फौरन बना ही नहीं। उसके बाद वो सारा नजरिया ज़रूरत आ गया जो आज भी हम देख रहे हैं कि वो उसके रिपरकशंस हम वो कर रहे हैं। आपने अपने आर्टिकल में कहा था, द रीजन फॉर दिस लॉ lie in a constitution subjected to unchecked abuse. Let's talk about that. Yes, not only unchecked abuse, I have used it in another article, Hmm. सर्जिकल प्रोसीजर्स बाय बुचर्स। जब कसाब जो है Hmm. वो आपकी माइक्रो सर्जरी करेंगे आपके आइन की, तो फिर यही होगा जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊँ, एक अहम चीज़ हम पॉइंट ना मिस कर जाएँ। देयर इज़ समथिंग जी। नोन एज़ द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। आपकी जो नेशनल पावर है, उसके Hmm. आंसर क्या होते हैं? क्योंकि जब आपके आर्किटेक्चर सही है, आपने Hmm. आंसर आइडेंटिफ़ाई कर लिए हैं सही तरीके Hmm. से, तो Hmm. फिर आपकी नेशनल प्रायोरिटीज़ बनती हैं जिसको आप नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, और उसके बाद जी। मुताबिक आप तरक्की करते हैं। सबसे पहले है आपका Hmm. जुग्राफ़िया। शायद ज़्यादा पाकिस्तानियों को इल्म नहीं कि दुनिया का हर मौसम पाकिस्तान में है। जो नॉर्थ और साउथ पोल का मौसम है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, और 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत गर्मी का वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में बिल्कुल। दरियाओं की बहार है। हम सिर्फ
पंजाब का 5 दरिया कहते हैं, 17-18 दरिया हैं जो पाकिस्तान में से गुजरते हैं। और हुँ, वो जो ज़रख़ेज़ी अपने साथ लेके आते हैं और जो हमारे एलुवियल प्लेन्स हैं और वादियाँ हैं, वो इतनी ज़रख़ेज़ हैं, हमने अपनी वाटर मैनेजमेंट ही नहीं की है। हमारे तकरीबन 12 से 15 तरबेला डैम का पानी हर साल समुंदर बुर्द हो जाता है। बारिशें आती हैं, सैलाब आते हैं, 4 से 6 तरबेला डैम का पानी हमारा साउथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हर साल खड़ा रहता है। हम हुँ, उस पानी को हार्नेस नहीं कर सके। हम डैम नहीं तो एक तो हमारे ज्योग्राफी का ये हो गया, दुनिया का हर सीज़न है, हर हुँ, चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा आपके पास सोने की खानें हैं, आपके पास कॉपर है, आपके पास टिन है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के लिग्नाइट कोल के रिज़र्वॉयर्स हैं। हुँ, हुँ, लिग्नाइट कोल जो है ये रिफाइनरी के साथ इसमें से डीज़ल, पेट्रोल हर किस्म की एनर्जी की डेफ़िनेशन निकलती है। वो हम नहीं एक्सप्लॉइट कर सके। पाकिस्तान में जिन लोगों ने चाहा कि लिग्नाइट कोल की रिफाइनरीज़ लगाएँ पाकिस्तान में, उनके लिए हुँ, रास्ते बंद कर दिए गए। दे वर नॉट अलाउड टू फंक्शन। जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल माफियाज़ हैं पाकिस्तान में, जो 60s में वजूद में आए थे, क्योंकि हुँ, हुँ, उनका तालमेल था हार्वर्ड स्कूल के साथ और कैपिटलिज़्म के साथ। वो उन्हीं के अगर आप हुँ, इयन टैलिबन की किताब पढ़ें, इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वेंटिंग अ नेशन, उसमें उसने ज़िक्र किया है कि ये जो अंसर था पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल और बिज़नेस एलीट में इंजेक्ट कर दिया गया डीएनए 60s में, ही कॉल्ड इट हुँ, द परमानेंट माफिया, उसकी वजह से पाकिस्तान ब्रेकआउट नहीं कर सका। हमने बहुत तरक्की की 60s में, उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान नया मुल्क बना था, लोगों में जोश था, लोगों में बलबला था। और फिर हमारे वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो अ, बड़े-सगीर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जब वो पाकिस्तान में आ गए, जैसे पीको हुँ, वाले थे, जैसे आदमजीत थे, इस्फ़हानी थे, ये अपनी सारी इंडस्ट्री इधर ले आए, कुछ ईस्ट पाकिस्तान में ले आए, कुछ इधर ले आए। तो इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की करवाई। लेकिन हुँ, भुट्टो साहब ने आके छुरा फेर दिया इन सब पे, नेशनलाइज़ करने के बाद वो चैप्टर हमारा क्लोज़ हो गया। इंडिया का क्लोज़ नहीं हुआ। एक ज़माना था बीको कम्पीट करती थी टाटा के साथ। अब हुँ, टाटा कम्पीट करती है नासा के साथ और स्पेस एक्स के साथ। तो अ, बहुत हमने टाइम ज़ाया कर दिया और जो हमारे काम हुए हुए थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हमने अपने मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक मुल्क की आप मुझे मिसाल दे दें, मलेशिया के अलावा और टर्की के अलावा, जहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम है जहाँ पर अवाम की ख्वाहिशात की गमाज़ी की जाती है, नहीं होती। हुँ, और एशिया और टर्की भी इतने हाईली इंडस्ट्रियलाइज़ नहीं है, जैसे सिंगापुर है या जैसे साउथ कोरिया है या जैसे जापान है, यानी अंधों में वो काने राजे हैं। तो ये आलम है हमारा। हमारा इसी तरह एजुकेशन के मैदान में हुआ है, टेक्नोलॉजी के मैदान में हुआ है। पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल होती थी लॉकडाउन किटों के साथ 60s-70s में। ये डबल डेकर बसें चला करती थी जब हम हुँ, बच्चे थे। दे वर ऑल असेंबल्ड इन पाकिस्तान। उनके इंजन्स आते थे, बाकी सब कुछ यहाँ। अब क्या है, अब तो बनी-बनाई बसें चाइना से आ रही हैं। हर चीज़ को पार्को बनाई गई पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन, उसको भी लूट लिया लोगों ने, वो भी तबाह हो गई। तो इट्स ये जो दास्तान है बर्बादी की और तबाही की, ये हमारे हर जो एवरी वेन ऑफ पाकिस्तान्स नेशनल लाइफ, हुँ, पाकिस्तान की हर रग में जो है ना ये सरायत कर चुकी हुई है। और अ, मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई ऐसे हुक्मरान नहीं आएँगे जो समझ सकें कि नेशनल पार्क का आर्किटेक्चर क्या है और उस आर्किटेक्चर के बेसिस के ऊपर वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और नेशनल प्रायोरिटीज़ बनाएँ, जो बैक वक़्त पर साथ-साथ यकसुई में, यूनिज़न में चलें, हम तरक्की नहीं कर सकते।
मैं आपको बड़ा एक अहम चीज़ बताना चाहता हूँ। वी वर वेरी मोटिवेटेड इन 2012। तो अ, 2013 में इलेक्शंस होने थे तो फैसला हुआ कि मैनिफेस्टो बनाया जाए। अ, मैंने गुज़ारिश की, मैंने कहा कि जी हमारे मैनिफेस्टो है, इट मस्ट बिगिन विद आवर आर्किटेक्चर ऑफ नेशनल पार्क। हम ये हम्म कहें कि इमीडिएट, मिड और लॉन्ग टर्म में नेशनल पार्क का जो आर्किटेक्चर है और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएँगे। तो मुझे याद है क्रिसमस के दिन थे 2012 में, मैं नाम लेना चाहूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जहांगीर अशरफ काज़ी पाकिस्तान के फॉरेन हम्म सेक्रेटरी, एम्बेसडर टू इंडिया, एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हमने पूरी रात, दिन-रात, कई दिन मेरे घर में और उसके बाद जहांगीर अशरफ काज़ी साहब के घर में इतना काम किया, इतना। हम्म अगर आप निकालें 2013 का मैनिफेस्टो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसके पहले 2 सफ़ों में अगर आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ था। लेकिन फिर आखिरी वक़्त पे क्या हुआ, 1 दिन पहले मुझे कहा गया कि जी हैंड इट ओवर टू शीरी मज़ारी एंड असद उमर। अब शीरी मज़ारी और असद उमर हम्म कहाँ हैं, आप सबको पता है। तो सारा सेहरा उनके घर सर चढ़ गया। लेकिन मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, अखबारों में लिखा हुआ है, मीडिया में मौजूद है, ब्लॉग्स में मौजूद है, वही चीज़ें वहाँ पे थी। मैं इमरान खान आपको को भी जी इन्होंने जकड़ लिया हुआ था इन लोगों ने, हम्म नहीं होने दिया और आखिर में सब के सब गद्दारी कर गए उसके साथ। मुझे इतना अफ़सोस होता है कि हमें कितना अच्छा मौका मिला था, लेकिन ये जितने साइकोफैंट्स थे, चापलूस थे, कुकूज़ एज़ आई कॉल देम इन द लास्ट प्रोग्राम, सब भाग गए हैं, उड़ान कर गए हुए हैं। उससे गलतियाँ करवा के, उससे चुक्के दे के, पंजाबी में कहते हैं चुक देना, चुक्के देते होते थे उसको। हम्म एंड दे डिस्ट्रॉयड हिम, दे वर लाइक, जैसे जोकें या जुइयाँ नहीं होती सर के अंदर, खून चूसती हम्म रहीं। एंड नाउ सब अय्याशी कर रहे हैं, सब ने तौबा कर ली है, ठीक है? पार्टी छोड़ गए हैं, सियासत नहीं करेंगे, मज़े ले रहे हैं। उन्हें जो मिला था उन्होंने वो कर दिया। अच्छा, खान साहब की आप बात कर रहे थे, हमारे पास बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए हैं और ये बात ज़रा लंबी है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इतनी सारी बातें हैं, तो आई थिंक कि हम अगले वाले एपिसोड में भी इसको लेके जाऊँगी मैं इसको। एक छोटी-सी बात जो आपने की कि हमारे इस वक़्त खान साहब जो हैं, यूथ को उन्होंने एजुकेट किया, बताया कि क्या है, उनके कम से कम उनके हकूक, उनको प्रॉब्लम्स बताएँ। लेकिन हमारा जो 60% के हमारा जो यूथ है अनस्किल्ड है बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयड है और जो अब जिस डायरेक्शन में हमारी फाइनेंस, हमारी इकोनॉमी जा रही है, मज़ीद तबाही की तरफ। आपको क्या देखिए लगता है हम इस देखिए यूथ को डॉक्टर सानिया निश्तर हुँ, के नीचे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलाए गए थे। इमरान जी, खान वाज़ वेरी कॉन्शियस हुँ, यूथ्स की एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको लोन्स देने, हुँ, इनक्यूबेटर्स, इन चीज़ों के ऊपर इमरान खान ने, द पॉइंट इज़, डॉक्टर सानिया निश्तर उसे एक बहुत सिंसियर टेक्नोक्रेट मिली थी और उसके हुँ, थ्रू उसने बहुत ज़्यादा काम किया। हुँ, ये चीज़ें जो है ना, इट्स नॉट अ मैजिक वैंड, ये एक दिन में नहीं हो जाता। इसको टाइम लगता है। जो मुल्क 60 साल बर्बाद हुआ है, 55 साल बर्बाद हुआ है, जिसका हुँ, खून चूसा गया है, ठीक है? हुँ, पत्थरों में से भी खून चूस लिया गया जिसके, तो उसको हुँ, रास्ते पे आने के लिए तो टाइम लगेगा ना। तो इमरान खान भी यही कोशिश कर रहे थे और देखें कि उसका जो सिंसेरिटी ऑफ पर्पज़ था, उसपे किसी को कोई शक नहीं हो सकता। No one can have any doubt on his sincerity of purpose. He was not looking for publicity, he was not a narcissist. वो हुँ, खिदमतगार था, ठीक है ना? उसने अस्पताल बनाए, इदारे बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, सब कुछ किया। खिदमतगुज़ार आदमी था, रिफॉर्मिस्ट आदमी था। आई थिंक उसको भी ही कुड नॉट ग्रैस्प द राइट टूल्स। लेकिन ऑल सेड एंड हुँ, डन, ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है। ये सफ़र अगर हुँ, वही स्टेटस को रहता जो 2021 और 22 में था, तो प्रोबेबली हुँ,
5-6 साल में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया होता। अब जो अब हो गया पाकिस्तान के साथ, मैं अगले 30 बरस तक नहीं देख रहा पाकिस्तान वो खोया हुआ जो असासा है अपना, the miles that we have lost in this turmoil and regime change operation, we will ever be able to reclaim. और जैसे मैंने नेशनल पार्क का जिक्र किया था, सोसाइटी, नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, सोशल डायमेंशन in a democratic country, not an autocratic country. Fighting machines, fighting machines are the armed forces. They get their strength and synergy from the backing of the people. So the military has to be, the armed forces have to be very careful कि इस brinkmanship को कहाँ तक लेके जाएंगे, because जो हम देख रहे हैं, हम लोगों से हमारा है, the social dimension is going to hit the armed forces and is already hitting the armed forces. Very, very negative. Right. इस पे हमें काबू पाना पड़ेगा, ठीक है ना? और एक विंग के साथ इस पे काबू पाया जा सकता है if Imran Khan is given justice, because he is the one in Pakistan who is controlling the hearts and minds. जैसे मैंने last time आपको कहा था, he was a tiny dot on the strategic template. लेकिन पाकिस्तान के दिलों में वो फैक्टर जो fleeting opportunities of national character and morale है, वो पाकिस्तान को immediately short term or mid term में, because he's aging, only Imran Khan can provide. पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों को सोशल मीडिया की वजह से हर चीज की अच्छी तरह समझ आ रही है. They are not. बिल्कुल. अच्छा, अब मैं आपसे ना बहुत जो ज़रूरी मुझे बात कहनी थी वो हमारे रिसोर्सेज की थी. अनफॉर्चुनेटली वी आर आउट ऑफ टाइम, तो मैं इसी टॉपिक पे और इसी पे हम कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे अगले हफ्ते में, बिकॉज आई वुड रियली वांट अस टू टॉक मोर अबाउट हमारे क्या रिसोर्सेज हैं और किस तरह हम उसको जियोपॉलिटिकली यूज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह विद द कमिंग बैक ऑफ इमरान खान एंड कमिंग बैक ऑफ गुड टाइम्स, बेटर टाइम्स, लेट्स सी वेयर वी कैन गो. आई लाइक टू एंड अप जी. फोर्स इन पाकिस्तान जिंदाबाद. मेरा अपना टूटा फूटा शेर है आजाद शायरी का. जी. मेरा रकीब मेरे अंदर है. रकीब दुश्मन को कहते हैं, कंपेटिटर. मेरा रकीब मेरे अंदर है, मेरा वजूद मेरा दुश्मन है. मैं अपने आप से जंग में हूँ, मैं अपने आप से जंग में हूँ. मेरी हालत मेरे वतन सी है. ये जंग आपने कल भी देख ली क्रिकेट मैच में. We are destroying ourselves. That's the sad truth. We are destroying ourselves. बहुत बेहतरीन आपने एंडिंग की, तो इसके बाद मैं कुछ और नहीं कहूंगी सिवाय शुक्रिया के. And I am looking forward to continuing this discussion. And raise your hand. Pakistan Zindabad. Zindabad.